and the allocation of seats based on the population. The two processes are entirely different. There is nothing common. Moreover, delimitation is a very complex exercise. It has so much political and contentious connotations. It is going to take time. Linking women's reservation bill with this is going to automatically delay our rights, women's rights. So we don't want this. The last delimitation exercise which happened in 2002, it was implemented, effective only by 2008. So now you can understand how much delay it can get into when there is delimitation happening. So we don't want that happening at all with this particular act. We want this the linkage between women's reservation bill and census and delimitation should be severed. This was in fact never a part of the original rationale for women's reservation. This was introduced in 2001, which was intended to address the population and stabilization and seat allocation. It has nothing to do with women's reservation. How can this particular matter decide the rights of women, which is 50% of India? The delinking is a limited procedure which we are asking the government, not a new policy. They just need to simply remove the requirement to complete the census and delimitation while retaining the original part of the 2023 Act. Women's reservation should be implemented immediately based on the existing strength of the Parliament and state assemblies. Our demand is not to stop or bypass delimitation or census. Let it continue. As and when it happens, we are happy to be part of it. Now, our demand number 2 is implementing the Women's Reservation Bill now. Since 1996, for the last 30 years, women are waiting patiently for our rights. This wait needs to come to an end. Any further delay is going to risk what for this is envisaged by the Parliament. So, we have to deal in the same. If reservation is not operationalized even now, it is going to affect the next general elections. And women will be standing as bystanders even for the next elections. We do not want that. We want our rights to be protected in the next election at least. If, as citizens, we want our Parliament to implement their laws immediately within a reasonable framework, not at a later date, not connected with anything else. So, our demand, most important, is that the time is now and implement women's reservation right now. Thank you so much. हमें women's reservation चाहिए और इस समय चाहिए, ये नहीं कि 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद जो current strength है उसी पे करें. Our next speaker, Joycia Thorat, YWCA of India. Unconditional implementation of women's reservation. As women and feminist group, we are here to demand for women's reservation, but not in the form the government trying to impose on us. We call for delinking of the women's reservation from delimitation and census. The 131st Amendment to Constitution unnecessarily links the Census and Women's Reservation Act. It's a sinister ploy by the government. Smaller states and southern states will lose out if it is linked to delimitation and census. Women's movements for nearly 3 decades have led this movement for women's reservation. But now, without any consultation with the women's movement, this regime, using women's reservation, bring in delimitation and census through backdoor. Though they talk about Nari Shakti, in reality they are not consulting us, a first step in any empowered decision-making process. Confusing people with census and delimitation and linking the women's reservation to it, it is a planned effort by the government to divert by women for communal agenda and exclude smaller states, southern states, its people and their voices. Not in our name, not in the name of women's reservation, bring in communal agenda, which will affect federalism and break the country.
We demand a flat 33% reservation for women based on the current number, and it could be expanded as we complete other processes. We should implement women's reservation with the current 543 number. We demand immediate and unconditional implementation of women's reservation. Thank you. डीलिंक फ्रॉम डिलिमिटेशन एंड सेंसस और इसी समय पर इसी स्ट्रेंथ पे इसको लागू करें। नेक्स्ट स्पीकर श्वेता राज फ्रॉम आइफा। यहाँ पर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद आप सभी प्रेस के साथियों को मैं नेशनल कोलिशन ऑफ वुमेन्स रिजर्वेशन और साथ में एपा की तरफ से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि जब पिछली बार ये बहुत ही जल्दबाजी में इसको परिसीमन से जोड़ करके पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया और ये कोशिश की गई कि किस तरीके से सरकार अपना हिडन एजेंडा उसको किसी तरीके से पास कर दे, लेकिन हम लोगों ने देखा कि पार्लियामेंट के अंदर विपक्ष ने मजबूती के साथ उसको रिजेक्ट किया, उसको हराया और सड़क पर भी वो तमाम लोग, तमाम महिला संगठनों ने, हम लोगों ने और तमाम तरक्की पसंद लोगों ने एकजुट होकर के इसको रिजेक्ट किया, इसके खिलाफ आवाज बुलंद की। एक बात जो हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कहना चाहते हैं कि अगर भाजपा सरकार को ये लगता है कि वो कुछ एमपीज को खरीद करके इसको पास कर लेंगे तो ये नहीं होने वाला है। हम उनको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से ये चेतावनी देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान की महिलाएं इसको लेकर के सड़क पर उतरी हैं और देश के हर एक राज्य में और दिल्ली शहर के अंदर इसको लेकर के एक जबरदस्त आंदोलन चल रहा है और आगे भी चलेगा। हम लोग जानते हैं कि विमेन रिजर्वेशन बिल को लागू करने के लिए एक लंबा संघर्ष रहा है, महिला संगठनों का रहा है, इस देश के तमाम तरक्की पसंद लोगों का रहा है और आज जिस तरीके से परिसीमन को जोड़ करके विमेन रिजर्वेशन बिल के साथ पार्लियामेंट के अंदर पेश किया गया। हम लोग जानते हैं कि 2023 में भी सरकार ने ये कोशिश की थी, लेकिन तब भी विपक्ष की तरफ से इस बात का विरोध दर्ज किया गया था कि इसको परिसीमन से न जोड़ा जाए। तमाम महिला संगठनों की तरफ से इसका विरोध किया गया था और ये कहते हुए कि इसको डीलिंक करके 2024 के चुनाव से लागू किया जाए विमेन रिजर्वेशन बिल, 33% विमेन रिजर्वेशन बिल, ये बात कहते हुए इसको पास किया गया था। लेकिन हम जानते हैं कि अभी तक वो चीज ठंडे बस्ते में है। हम ये सवाल सरकार से पूछना चाहते हैं कि आखिर इस तरीके से कब तक इसको डिले किया जाता रहेगा, आखिर कब तक इसको परिसीमन से जोड़ने के नाम पे सरकार अपना हिडन एजेंडा बार बार एक तरीके से महिलाओं के कंधे पर रख करके अपनी तलवार चलाना चाहती है। हम लोग जानते हैं कि जिन राज्यों में परिसीमन के बहाने चुनाव हुआ वहां पे किस तरह का कम्युनल डिवीजन किया गया। असम का चुनाव, जम्मू कश्मीर का चुनाव इसका एकदम हालिया उदाहरण है। और आज के समय में अगर सरकार ये सोचती है कि सरकार कुछ एमपीज को खरीद करके अपना हिडन एजेंडा जीत लेगी तो ये नहीं होने वाला है। हम साफ साफ मांग कर रहे हैं कि तुरंत विमेन रिजर्वेशन बिल लागू किया जाए और जिस तरीके से इसको परिसीमन के साथ जोड़ा गया है, जिस तरीके से सरकार अपना सांप्रदायिक एजेंडा महिलाओं के कंधे पर रख करके इस तलवार को चलाने वाली है, हम इसको रिजेक्ट करते हैं और ये चीज पास नहीं हो पाएगी। और इसी सवाल के साथ मैं अपनी बात खत्म करती हूँ। शबनम हाशमी, और शबनम अगर आप थोड़ा जो नेशनली अलग अलग कार्यक्रम है उनका भी थोड़ा उन सब साथियों का जो मुझसे पहले बोल चुके, तकरीबन सारी बातें कह चुके। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि हिंदुस्तान की औरतें दूसरे दर्जे की नागरिक बनने को तैयार नहीं है। ये जो कोशिश हो रही है हमको कुछ भीख में देने की कि जब हम बढ़ा लेंगे जगह तो आपको भी थोड़ी सी जगह दे देंगे। अभी तो कमरे में जगह नहीं है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लें तो फिर औरतें भी उसमें आ जाए, वो हमको मंजूर नहीं है। हमको जो पार्लियामेंट है, जो 543 सीटें हैं, उसी के अंदर 33% रिजर्वेशन चाहिए। हमें पता है कि अलग अलग पार्टियों में जितने पुरुष हजरात बैठे हैं उनके लिए ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक पार्टी की अपनी पॉलिटिक्स है और दूसरी पेट्रियार्की है और दोनों मिलके जिस तरह औरतों को बाहर रखना चाह रहे हैं। हिंदुस्तान की औरतें पहले भी उठी हैं अपने हक के लिए और अब फिर उठेगी। ये जो अपने को औरतों का मसीहा जो डिक्लेयर कर रखा है कि हमने जितना किया औरतों के लिए
उतना किसी ने किया ही नहीं है। मैं उन मसीहा की जो हकीकत है जमीन पे, कुछ तो हम में से, ज्यादातर हम में से वो लोग हैं जो गांव-गांव और बस्ती-बस्ती घूमते हैं और उनकी जो कहानियां गोदी मीडिया में प्रोजेक्ट की जाती है उसकी असलियत हम जमीन पे जानते हैं। पिछला दशक जो है वो औरतों के साथ बिट्रेयल का दशक ही माना जाएगा, इसको और कोई नाम नहीं दिया जा सकता। इट्स अ डिकेड ऑफ बिट्रेयल ऑफ विमेन ऑफ दिस कंट्री, एंड इन द नेम ऑफ गिविंग empowering women, they have totally pauperized women, they have taken away all rights of women. This is now crossing all limits. 2023 से पहले 24 का इलेक्शन आ रहा था तो उनको 23 में महिलाएं याद आ गई, तो उन्होंने नाम के लिए कर दिया और खूब हंगामा उसका किया कि हमने तो औरतों को रिजर्वेशन दे दिया। जब बंगाल और बिहार और इलेक्शन आ रहे थे तो उनको फिर से महिलाओं का बिल याद आ गया, और उसके बाद उन्होंने ये किया कि ऑपोजिशन ने फेल तो किया डिलिमिटेशन बिल, लेकिन गोदी मीडिया सारा कहानी सुनाता रहा कि ऑपोजिशन ने विमेन रिजर्वेशन बिल को पास नहीं होने दिया। तो जिस तरह वो नरेटिव तय करते हैं और उसका जो भोंपू बजाते हैं, आई थिंक विमेन हैव वेरी डीपली अंडरस्टूड दैट, एंड दिस रिजीम एंड who calls itself the Messiah of women is now going to face the wrath of Indian women. Despite they are controlling the election systems, they will see in the coming elections what happens to them. Because कितना ही आप ईवीएम का घोटाला कर लें, जब औरतें एक देश की ये तय कर लेती हैं कि अब हमें मंजूर नहीं है ये धोखेधड़ी वाली सरकार, तो उसके सामने औरतों के हिम्मत के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता। और औरतें इस बार उतरी हैं, पहले भी उतर चुकी हैं, 2010 में भी पूरे हिंदुस्तान में घूमी थी। मुझे सारे प्रोग्राम्स तो नहीं मालूम, क्योंकि इसमें अब इस जो नेशनल कोलिशन फॉर विमेन्स रिजर्वेशन है, इसमें सैकड़ों ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर चुकी हैं। जो मेजर नेटवर्क्स हैं वो आपके सामने ऑलरेडी बोल चुके हैं, NFIW, ETWA, YWCA, ICWM, देयर आर हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन ये कि 20 तारीख से पूरे देश में धरने शुरू हो रहे हैं, वो धरने यहाँ दिल्ली में जंतर मंतर पे भी होगा, वो धरने गवर्नर्स के ऑफिसेस के सामने भी होंगे, गाँव में, गलियों में, हर जगह पे जो रीच आउट है वो करोड़ों में इस बार होने जा रहा है इस बिल को लेके। मेरे पास पूरे डिटेल्स नहीं है, बट वी विल शेयर देम विद यू। थैंक यू वेरी मच, टाइम बहुत कम है इसलिए। तमिलनाडु में 20 तारीख को राजभवन के सामने धरना प्लान है, वेस्ट बंगाल में 21 तारीख को रैली प्लान है, उड़ीसा में रैली और डेमोन्स्ट्रेशन प्लान है 20 तारीख के लिए, केरला में धरना प्लान है राजभवन के सामने, हिमाचल प्रदेश में सिग्नेचर इकट्ठे किए जा रहे हैं और 21 जुलाई को राजभवन के सामने धरना प्लान है, हरियाणा में डिस्ट्रिक्ट लेवल की मीटिंग्स चल रही हैं और MP MLAs को ये जाके दिया जाएगा। उसके अलावा कर्नाटका में हॉल मीटिंग प्लान है और वहाँ पे 14 तारीख को भी एक बड़ी मीटिंग प्लान है और प्रोटेस्ट प्लान है। उसके अलावा यूपी में एक कन्वेंशन प्लान है 25 जुलाई को, जो कि लखनऊ में की जाएगी। असम में जॉइंट प्रोटेस्ट प्लान है गुवाहाटी में 20 जुलाई को, और सारे जिलों में 21 जुलाई को कार्यक्रम होंगे। और ये अभी केवल शुरुआत है, अभी आगे के समय में और भी दिल्ली में, अच्छा कल देहरादून में भी एक बड़ा कन्वेंशन है, और दिल्ली के जो अभी तक हमारे कार्यक्रम फाइनलाइज हो चुके हैं वो है कि 20 तारीख और 21 तारीख को एक जॉइंट धरना होगा अंडर दिस बैनर ऑफ नेशनल कोलिशन ऑफ विमेन्स रिजर्वेशन। उसके बाद मंडे से फ्राइडे, उसके बाद हर मंडे से हर फ्राइडे तक, जब तक कि मॉनसून सेशन चलेगा, रोज वहाँ पे धरना होगा। उसके अलावा एक हम प्लान कर रहे हैं कि सारे विमेन MPs के साथ एक नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द फर्स्ट और द सेकेंड डे ऑफ दिस पार्लियामेंट्री सेशन, और वेबिनार्स और बस्तियों में मीटिंग्स, पर्चे, वेबिनार, नुक्कड़ लेवल मीटिंग्स, ये भी सब कार्यक्रम है, और जो ऑनलाइन पिटिशन है वो भी चलते रहे। हम जो इनकलाबी औरतें इधर बैठी हैं, हमने भी ठान लिया है कि ये 56 इंची जो डरता फिरता है इसको जरा सामने ले आए। तो इसीलिए 20 जुलाई से जंतर मंतर पे, जहाँ पे CJP का भी धरना चल रहा है, और वो पार्लियामेंट की तरफ मूव करेंगे और हम वहाँ बैठेंगे। तो मोदी जी को जरा छठी का दूध याद दिलाना, मैंने सुना है, और हमारी महिलाओं ने, जैसा अमृता ने अभी यहाँ पे अनाउंस किया है
कि कुछ ही राज्यों के कार्यक्रम अभी तो हमने बताए हैं। हर गली कूचे में घेरेंगे और मोदी जी को कहीं ऐसा ना हो जैसे पंजाब में भाषण देने गए थे और वापस लौटना पड़ा था, वैसा हो जाए। और महिलाओं ने अभी कमर कस ली है और ये बिल कानून जो है पूरी ईमानदारी से वो लागू करें। इसमें कोई छल कपट की जरूरत नहीं है, जैसा उनको जुमले उछालने की हमेशा से आदत पड़ी हुई है वो सब बंद करें। मोदी जी को 543 और 950, 850 ये सारे आंकड़े खेलने की जरूरत नहीं है, वो अनपढ़ है, उनको वैसे भी ज्यादा गणित आता नहीं है। तो वो खुद ही कहते हैं, खुद ही अपना कोई सर्टिफिकेट दे नहीं पाए। तो मैं तो इसलिए कह रही हूँ ना, जितनी बार लोगों ने मांगा RTI डाली तो वो दे ही नहीं पाए। कभी जाने कहाँ का कंप्यूटराइज ले आते हैं, कभी कहाँ का, तो इसलिए मैं तो उसी आधार पे बोल रही हूँ। तो जब उनको हिसाब किताब नहीं आता तो वो हमारे महिलाओं के हिस्से में छोड़ दें। और मैं सलाम करती हूँ मेरी लीडर गीता मुखर्जी को, जिन्होंने ये अलख जगाई और हमें फख्र है कि हम उस लोगों को, उस मशाल को आगे लेके जा रहे हैं। मैं बहुत सारी बातें बड़ी बड़ी नहीं कहना चाहती, सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि भारतीय महिला फेडरेशन पहले दिन से आखिरी दिन तक, आखिरी सांस तक अपनी पूरी जान लगा देगा। और मैं कह सकती हूँ इस दावे के साथ कि हमारे सभी राज्यों से भागीदारी स्टेट में भी होगी और यहाँ दिल्ली की धरती पे भी होगी। हमारे महिला साथी पूरी ताकत के साथ और हिम्मत के साथ यहाँ पे आएंगे। और मोदी जी ये ना कहें कि ये तो नॉर्थ ईस्ट में तो ऐसे ही चल रहा है, वहाँ पे ऐसे चल रहा है, वहाँ वालों को तो दे देंगे, वहाँ वालों को बाद में देखेंगे। ये सब नहीं है। हर महिला की भागीदारी पार्लियामेंट के अंदर होनी चाहिए, हर सेक्शन की होनी चाहिए। पहले भाई इसको तो लागू कर दो आप, है ना। तो वो हम बहुत सारी बातों में नहीं उलझ रहे हैं। बहुत सारे संगठन है, जैसा शबनम ने कहा, हमारा जो संगीत लॉन्च हुआ है, कोशिश करें उस धुन को ज्यादा से ज्यादा लोगों में ले जाएं, क्योंकि उसमें साफ कहा गया है कि टालम टोल नहीं चलेगा, बंद करो इस टालम टोल को। तो साथियों जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद। वो है महिला आरक्षण। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि महिला आरक्षण को इन लोगों ने बिल्कुल अनसुना किया हुआ है। एक तरफ मोदी सरकार नारी सम्मान की बात करती है, गाय को बहुत सम्मान देती है, पर संसद में बैठने से डरती है। संसद में बिठाने से महिलाओं को क्योंकि रिजर्वेशन मिलेगा तो संसद में बैठने का मौका मिलेगा। और वहां वो जब एक नारी, एक महिला रसोई से लेकर सेना तक अपना पूरा योगदान देती है, तो फिर उसका 33% रिजर्वेशन में टालम टोल क्यों? ये जो परिसीमन का जो इन्होंने ढकोसला शुरू किया था वो जान के किया था, क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि भारत की महिला आगे आए। पर मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहूंगी मोदी सरकार को कि हम महिलाएं अब चुप बैठने वालों में से नहीं है। हम खुलकर इस चीज का विरोध करेंगे और आप लोगों को इतना मजबूर कर देंगे कि आप लोगों को महिला आरक्षण देना ही पड़ेगा। आखिर में मैं बस बहुत ज्यादा नहीं कहूंगी क्योंकि सभी ने काफी कुछ कह दिया, तो रेपुटेशन में बातें आती हैं। बस एक आगे मैं 2 शब्द में कहना चाहूंगी। कहने को तो नारी शक्ति का हर मंच पर सम्मान है, कहने को तो नारी शक्ति का हर मंच पर सम्मान है, लेकिन अधिकारों पर अब भी सियासत मेहरबान है। लेकिन अधिकारों पर अब भी सियासत मेहरबान है। वादों के दीप बहुत जले, पर सच का सवेरा कब होगा? महिला आरक्षण का सपना आखिर पूरा कब होगा? आखिर पूरा कब होगा? थैंक यू सो मच। पोस्टर पे लिखा हुआ है नो मोर डिले, नो मोर पॉलिटिक्स, इम्प्लीमेंट 33% रिजर्वेशन नाउ। तो नेक्स्ट स्पीकर रोमी विक्सन ऑफ IC। हमारी शराफत है कि हम सिर्फ 33% बोल रहे हैं। Good afternoon, everyone. जैसे already Dr. Joshia ICWN का objective and intention share कर चुकी है. I would just only say one thing, that the true success of the reform lies not merely in the enactment, but in the timely implementation. See, we want this bill to be passed in this session. So this is
This is our intention and we want it now. No more delays, no more delays. Thank you so much. तो नेक्स्ट स्पीकर जगमती लिए अलग अलग राज्यों के अंदर जो गतिविधियां चल रही है उसमें साथी ने अभी कुछ स्टेट्स के बारे में बताया। हरियाणा के अंदर जो डिफरेंट वुमेन ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सब इंडिविजुअल्स हैं जो मैटर करते हैं वहाँ पे, उन सब को लेके तमाम जो एमपीज हैं और एमएलएज हैं जो बीजेपी को छोड़कर उन सब से मिला जा रहा है। उन सब को जो है अपनी जो फैक्ट शीट है वो दी जा रही है और कन्वेंशन की जा रही है। और 21 तारीख को यहाँ पे बहुत बड़े प्रदर्शन में पूरे हरियाणा से महिलाएं शामिल होंगी और सिग्नेचर कैंपेन वो भी जारी है वहाँ पे। इसके साथ साथियों 2-3 बात मैं एम्फसाइज करना चाहती हूँ कि ऐसा नहीं है कि महिला विमेन ऑर्गेनाइजेशंस जो है उन्होंने शुरू से ही आरक्षण की मांग जो है वो रखी हो। बहुत भरोसा किया महिलाओं ने भारत के लोकतंत्र के ऊपर और लोकतंत्र के जो प्रहरी है उनके ऊपर। 30 साल तक हमने ये सोचा कि ये तो उचित तरीके से महिलाओं को राजनीतिक प्रक्रिया में शामिल कर लिया जाएगा, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि इतनी फितरी सत्तात्मक मानसिकता जो है वो देखने को मिली। और उसके बाद महिला संगठनों ने ये आवाज उठाई कि 33% के लिए तो हमें दावा डालना ही चाहिए। और जब से ये दावा डाला है आप ये देखिए कि शायद ही भारत के इतिहास में कोई ऐसा बिल रहा होगा कि जो इतने सालों तक ऐसे लटकता रहा हो। 30 साल तो ऑन रिकॉर्ड है, लेकिन 1975 में कमेटी ऑन विमेन स्टेटस रिकमेंडेशन तो वहां से शुरू हो गई थी। 50 साल हो गए हैं इसको लटकाते हुए। 30 साल हमने इंतजार किया और अब क्या किया जा रहा है? पहले जो महिलाओं को डिप्राइव किया रिजर्वेशन से योग्यता के सवाल पे, योग्यता में अब इंडिया की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, नौजवान, उन्होंने और तो क्या कुश्ती तक में भी ये स्थापित कर दिया कि हम किसी से पीछे नहीं है। कुश्ती में भी पूरी दुनिया को हरा के आ गई वो, और क्या यूपीएससी, क्या सारी योग्यताएं जो है वो करके दिखा दी। उसके बाद जब से ये पिछले 14 साल से ये सरकार आई है, जो इनका रवैया है वो हम महिलाओं को योग्यता का सवाल जो था वो एक सवाल था फिर भी, लेकिन अब तो अछूत बनाया जा रहा है कि महिलाएं संसद में आएंगी तो सीट बढ़ाकर ही आएंगी। हम बढ़ी हुई सीट लेना चाहते हैं और बढ़ी हुई सीट मिलनी चाहिए, लेकिन वो तो एज अ रिजल्ट ऑफ सेंसस और डिलिमिटेशन हो ही जाएगा। लेकिन किसी भी आरक्षण के संदर्भ में इस तरह से जो जगह का सवाल है, जो सीटों का सवाल है, वो नहीं उठा। तो हमें क्या अछूत धकेला, अछूतों की श्रेणी जो वो बनाई जा रही है महिलाओं को जो है, तो ये जो सवाल है इसका कड़ा विरोध किया जाएगा बिल्कुल हर तरीके से। और इसमें जो हमें हानि हुई है अभी तक भी, जो ये करते हैं, नफाजी करते हैं, नारी शक्ति बंधन अधिनियम। अरे नारी शक्ति बंधन अधिनियम की आड़ में तुमने 150 सीटें तो पार्लियामेंट में हमारे से छीन ली, और विधानसभाओं के चुनाव 2023 के बाद जो हुए हैं 500 से ऊपर वहां पे छीन ली तुमने। तो मतलब ब्याज सहित वसूल करेंगे, ऐसे छोड़ने वाले नहीं है। क्या समझते हैं ये अपने आप को कि ये ही देश को चलाएंगे, लेकिन देश चलेगा जनता की आवाज से। और बहुत बड़ी जनता ऐसी है जो आज हम सिग्नेचर कैंपेन करवाने जा रहे हैं, हम लोगों के बीच में अपना प्रचार लेके जा रहे हैं। तमाम लोगों की जुबान पे ये है कि ये तो होना ही चाहिए 33%, तो असल में 50% मिलना चाहिए। महिलाएं जितना देश के विकास के अंदर अपनी जो योगदान जो दे रही है उसको देखते हुए, तो ये भावना जो है, इस भावना को परवान चढ़ाने के लिए हमने ये पूरा नेशनल कोalition बनाया है। और इसमें अलग अलग रंग और अलग अलग जोश और विचार ऊर्जा के लोग शामिल हैं। और हम आने वाली 20 तारीख को जब यहाँ पे देश के सांसद और ये सरकार सामने होगी, हम भी वहां पे बिल्कुल सामने होंगे। ऐसे छोड़ने वाले नहीं है, अपने हकों को आवाज उठाएंगे। ठीक है, वो एक दिन दबा देंगे, 2 दिन दबा देंगे, लेकिन पूरा सत्र जो चलेगा
हमने ये पूरा योजना बनाई है कि पूरे सत्र में एक अगर तुम्हारी आवाज होगी तो दूसरी हमारी आवाज भी उपस्थित रहेगी इस देश के अंदर और आगे आने वाले समय में भी इसको कंटिन्यू किया जाएगा। तो धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। और आप सबने हो सकता है देखा हो कि पिछली बार अभी जब 2026 में स्पेशल सेशन करा था तो सेशन शुरू होने से पहले प्रोपेगेंडा वीडियोस निकाले गए थे बहुत सारे, कई प्रिंसिपल्स ऑफ विमेंस कॉलेजेस से यहाँ तक कि कुछ रिटायर्ड जजेस से भी जो बता रहे थे कि बिल कितना अच्छा है और तो कैसे एम्पावर करेगा। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि किसी ने ड्राफ्ट नहीं देखा था। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि अब अगर, क्योंकि मीडिया में रिपोर्ट्स आ रही कि शायद अभी भी कोई लाया जाए बिल तो एटलीस्ट तो सबके सामने रखा जाए, गली मोहल्लों में महिलाओं को उसमें फीडबैक लेके तभी कुछ आगे लाया जाए। मैं अब रिया को इनवाइट करती हूँ, YWCO। Good afternoon, friends. I speak here on behalf of the National Coalition for Women Reservation Bill, but I also acknowledge that I am sitting here on behalf of YWCA of India, carrying the voices of women from 23 states across the 95 branches. And all of us here carry thousands of voices of women from grassroots, from the communities that we work with. Let us all remember one thing. This is not a day's struggle, this is not a week's struggle, we are talking about decades of struggle. We intergenerational leaders of different age groups, I have seen, I have heard our leaders talking about struggle, our leaders talking about getting the rights for them. And at this point of time, when we met on 16th of April, there was a major pushback from the Women's Rights Organization on this one-point agenda that the government was considering us fools, that they could take a bill that was completely unprepared, the contents of the draft completely unknown, and trying to make the Women Reservation Bill a bargaining chip and saying that this is for the betterment of women, but never disclosing that delimitation is going to be caught in the red tape of bureaucracy. It is going to take years. So you promised us 2029 women will come on the parliament, but no, it is not going to happen. It was as simple as that. Not to reiterate what all the other leaders have said, just wanted to reiterate, resonate and reflect on what we have all agreed upon, dealing from the delimitation process. We are not demanding this is not our fight today, and you don't get to make this our fight. Our fight today is to ensure that we implement the Women Reservation Bill with the clauses that we agreed upon in 2023 and without any further delay. And one request to the government is please stop the performative empowerment. Please don't make unnecessary claims in the name of women and don't speak on behalf of us. You consult with us, you debate with us, you take opinions from us, and this is our request. Dealing from the delimitation process and implement the Women Reservation Bill now. Thank you. Thank you. And before we have Bhavna conclude today's press conference, there is more sets of posters that we would like to release. So if everyone can just pass those along and. And the demand is very clear that in this monsoon session, the government should bring a constitution amendment bill to deal in women's reservation from the issue of delimitation and census and implement it at the current strength of parliament and of state assemblies. I just want to add that the poster which is in my hand and this one, these two posters have been done by a 21-year-old girl who is actually running away from a forced marriage, but designing the posters for us at 3 in the morning. Wow. Thank you. As Dia also reminded, we an intergenerational fight and you can see it on this stage as well. Okay, now to conclude today's press conference, Bhavna Anhad से अपनी बात रखेंगी. गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स एंड थैंक यू सो मच आप सबका यहाँ आने के लिए. हालांकि मैंने बहुत सारी विमेन जर्नलिस्ट को आज का मैसेज भेजा था, पर सैड पार्ट इज कि विमेन जर्नलिस्ट बहुत कम नज़र आ रही हैं, जबकि उनको ज़्यादा तादाद में आज आना चाहिए था इसके सपोर्ट में.
नारी शक्ति वंदन अधिनियम सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, ऐसा लगता है कि महिलाएं इस देश को चला रही है, मतलब इतना भारी भरकम वर्ड है ये। और बेसिकली इस गवर्नमेंट की जो मेंटालिटी इतने साल से रही है कि महिलाओं के कंधे से उनको बंदूक चलानी है, इलेक्शन आ रहे हैं तो महिलाओं के खाते में पैसे डाल देंगे, सिलेंडर दे देंगे, कहीं पे बाथरूम बनवा देंगे। पर कल का मैं एक उस पुलिस स्टेशन का मैं नाम नहीं लूँगी, कल हम एक जगह गए थे एंड वहाँ पे कोई विमेन टॉयलेट नहीं था। तो ये जो एक पूरा एक छलावा सबके साथ करा जाता है ना दिखाने के लिए, मीडिया गिमिक कि आज हमने ये कर दिया, 50 जर्नलिस्ट ने कवर कर लिया अक्रॉस इंडिया और वाहवाही हो गई, और फिर बाहर जाके हमने एक तमका भी पहन लिया। बेसिकली 50% होने के बावजूद भी आज अगर हमको 30 साल बाद भी अगर हम उसी चीज़ पे ही उसी चीज़ के बारे में ही बात कर रहे हैं, और मतलब वो सोचने वाली बात है कि जो बेसिकली पेट्रियार्कल माइंडसेट है वो आपको कभी बाहर निकलने ही नहीं देगा, और ना वो आपको कभी इक्वल लेवल पे आने देगा, क्योंकि चाहे वो आपके घर हो, चाहे वो पार्लियामेंट हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो कोई मीडिया हाउस भी क्यों ना हो। अगर हम एक एक चीज़ को कंपेयर करके देखें तो एज विमेन हमको खुद समझ में आएगा कि क्या प्रॉब्लम है और कहाँ से ही इस चीज़ की शुरुआत होती है। तो वो बेसिकली इनसिक्योर्ड है कि अगर वो महिलाओं को 33% पे भी ले आए तो वो उसमें उनकी जो अभी तक दिखाते हैं कि हम मसीहा हैं और हम सब कुछ करते हैं और हम ही देश चलाते हैं और हम ही चला सकते हैं, उस चीज़ पे फुल स्टॉप लग जाएगा। क्योंकि जिस दिन यहाँ पे मेजॉरिटी में अगर 50% अगर विमेन आ जाती हैं और उस टाइम पे जिस तरह से देश चलेगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा। वो एक सच्चाई, ईमानदारी और एक बैलेंस वे में होगा। सारी पॉलिसीज या कोई भी डिसीजन लिया जाएगा जो कि आजकल नहीं है। इलेक्शन से पहले और अपने वोट लेने के लिए आप महिलाओं को कुछ ना कुछ पकड़ा देते हैं और बात वहीं पे खत्म हो जाती है। उसके बाद आपको महिलाओं की जरूरत नहीं है। आपको महिलाओं की जरूरत इलेक्शन से पहले ही आती है, या आपको कोई बिल पास कराना है तब आपको कुछ चीज़ याद आती है, अदरवाइज आपको महिलाओं की कोई जरूरत उस तरह से नहीं लगती है। एंड आई एम श्योर अपने घरों में भी नहीं लगती होगी, क्योंकि माइंडसेट वही है जो आपके अंदर है, आप उससे बाहर नहीं निकल सकते। एंड बेसिकली हम ये चाहते हैं कि आप ये 33% इम्प्लीमेंट करिए और हमको कोई कंडीशंस नहीं चाहिए। आप पहले इसको इम्प्लीमेंट करिए, हम उसके बाद आपसे बात करेंगे आमने सामने बैठ के। ये मीडिया के थ्रू या ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के थ्रू हमको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। आप आमने सामने बैठिए, इतनी हिम्मत रखिए और आमने सामने बैठ के चीज़ों को रिजॉल्व करिए। एक तो मतलब ये चीज़ है। एंड दूसरा बेसिकली जो इट्स अ सेइंग कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, इट इज द सेम थिंग। आप चीज़ को ड्रैग करे ही जा रहे हैं कि आप इतना ड्रैग कर दें कि लोग ये बोले कि चलो यार छोड़ो, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, क्या फर्क पड़ता है, चल तो रहा ही है ना। तो और लास्ट में बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हॉर्स ट्रेडिंग से कोई भी मुल्क आज तक नहीं चला है और ना चलेगा। थैंक यू। थैंक यू। हम लोग 2-3 सवाल ले सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट है कि प्लीज फोकस योर क्वेश्चन ऑन जो नेशनल कोalition ऑन वुमेन्स रिजर्वेशन के जो आगे प्लान्स हैं, जो कैंपेन है और जो डिमांड्स हैं, प्लीज स्टिक टू दैट। या 28. Besides the dharnas, what is your outreach going to be towards political parties, because they will be in parliament and this is likely to come up. So what is yes, so I'll request Shabnam. A supplementary question since Annie ma'am is here. Yes. Ma'am, in the previous session, the discussions within the India bloc, we were part of those meetings when when the session would happen, the strategy planning. What is happening right now? How are you taking it up right now? See, as far as reach out is concerned, we spoke about it in the beginning, that this statement which has already been signed by about 1,500 people and it's open. We plan to collect about 10,000 signatures and this will be going to all the member of parliaments and also at the state level to MLAs etc. There are hundreds of groups now who are working as part of the National Coalition for Women's Reservation, and we are also planning a meeting in Delhi with women parliamentarians
as well as a webinar where we would be inviting them. So there will be simultaneous processes, and personally delegations would be going and meeting different parliamentarians. Before organizing or coming together of all these different organizations, just I want to add from what Shabnam said. The different organizations have already 2 months back, they have started meeting the MPs in their constituencies and giving them the memorandum with this single agenda, that is dealing the conditionalities and implement it now. That is what that all over the country the campaign is going on, and during this time also what Shabnam said, that will be there in every state. So this you asked that question, India bloc this thing. You see, India bloc parties were also, they raised this question when in 2023 when the government was brought it with these conditionalities. They objected, almost all parties objected to the conditionalities from the opposition side. They objected to it, and in the India bloc meeting also, which you are mentioning, I was also there. Yes, that there also they said no question of linking this with, because that linking their real agenda is, everybody knows the gerrymandering of the constituencies and what they have done in Jammu Kashmir and in Assam. So where the opposition parties they reiterated that they will not allow that, but they will do everything possible for the implementation of women reservation without any conditionalities. That's all. And I had shared programs from about 11 states, which actually we received information just today in the morning. In the next 2 days, we probably have programs all across the country. Any other questions, please? As I said, limited to this, but limited to this question of very small and important questions. मैम, ये जो आप लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं, इस संसद सत्र में क्या कुछ लगता है, क्या असर होगा और कितने आपके प्रयास कारगर हैं? और सवाल, कोई और सवाल है क्या? Can take 1 or 2 more questions from friends from the media. Okay, so I think ये जो सवाल आपने पूछा है, जी मैम, निश्चित रूप से जो सरकार जो अपनी तरफ से तोड़ फोड़ करके और 2/3 बहुमत जुटा के जिस तरह की साजिशों में, षड्यंत्रों में वो शामिल है, उसकी आंख में आंख डाल के देश की महिलाएं जो उनको बता रही है कि हम तुम्हारी चालों को समझ रहे हैं। और इसी तरह से जितने भी अलग अलग राजनेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, हम तमाम जो अपोजिशन पार्टीज हैं उनके अध्यक्ष जो हैं उनसे मिल रहे हैं, एमपीज जो हैं उनसे मिल रहे हैं, एमएलए से मिल रहे हैं। तो वो जो संवाद हो रहा है उसमें कोई वो जवाब ऐसा नहीं दे पा रहे हैं कि जो कन्विंसिंग लगे कि क्यों महिलाओं को 33% रिजर्वेशन ना दी जाए। और अभी जब संसद यहाँ पे बैठेगी तब जो हमारा ये अभियान जो है, और ऐसा नहीं है कि केवल ये रिप्रेजेंटेटिव्स को ही हम अपील कर रहे हैं, हमने गीत बनाए हैं, अपने नारे बनाए हैं। हम जो है तमाम तरह से महिला और जो भी प्रोग्रेसिव माइंडेड पीपल हैं, नॉट ओनली फीमेल्स, उन सब के बीच में जा रहे हैं कि एक महिलाओं के इस अधिकार के लिए एक पूरा ब्लॉक देश के अंदर खड़ा होना चाहिए, जो सचेत रूप से ये असर्ट करे कि ये अधिकार है और ये दिया जाना चाहिए। तो हमें ये लगता है कि ये जो बिल्डअप है, ये सरकार जो है निश्चित रूप से उसको कंसीडर करना पड़ेगा। ऐसा ठीक है, वो तानाशाही में विश्वास करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक तरीकों से चलेगी और लोग हम हैं, लोग को सुनना पड़ेगा, ये बात। और कार्यक्रम ऑलरेडी कोलैबोरेटिवली देश भर में चल रहे हैं, जो बहुत सारे साथी यहाँ पे भी बैठे हैं। कई लोग बस्तियों में ऑलरेडी पर्चों का काम कर रहे हैं, नुक्कड़ मीटिंग कर रहे हैं, एमपी से आउटरीच कर रहे हैं। एनीवन फ्रॉम द पैनल हु वांट्स टू से समथिंग और शुड वी देन रैप अप? देखो, कुछ भी नहीं है तो शर्म तो होगा कुछ लोगों को। ऐसा नहीं है कि विमेन्स वॉइस वी आर सिटिंग, हमने तय किया है कि पूरी सेशन के काल में हम बैठेंगे और फिर आगे, अभी इस बार नहीं सुनेगा तो आगे भी हम चलेंगे। ऐसा नहीं है। मंच से एक बात आई थी
कि मोदी कंधे पे सवार होकर आएगा। मोदी हर उस कंधे को इस्तेमाल करता है, चाहे कोई दे ना दे, चाहे मीडिया का हो, चाहे राम मंदिर चढ़ावा चोरी का हो, और चाहे आप नहीं दे तो भी वो आपके कंधे पर चढ़ के कुचल कर आएगा ही। जैसे आप वोट दें ना दें फिर भी वो जीतेगा। नहीं, हम लोग इसी उम्मीद के साथ इससे कैसे लड़ पाएंगे? मेरा मतलब ये है कि कैसे लड़ पाएंगे। देखिए, मोदी और भाजपा सरकार और सत्ता में बैठी सरकार तो ये कोशिश कर रही है, और उन्होंने कोशिश भी किया कि महिलाओं के कंधे पे रख करके परिसीमन किया जाए। लेकिन पिछले हमने देखा पार्लियामेंट सेशन में जब आनन फानन में पेश किया गया, वो एक्चुअली नहीं कर पाए। जिस तरीके से किसान बिल उनको फार्मर्स को बिल लेकर के आए थे और उनको वापस लेना पड़ा था, ठीक उसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर भी ये रिजेक्ट हुआ। और संविधान संशोधन बिल की हार को उन्होंने इस तरीके से पेश किया जैसे विमेन रिजर्वेशन बिल की, जो कि ऑलरेडी पास हो चुका था। तो कंधा तो वो हमारा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमने पिछली बार भी इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, उनकी हार हुई थी, और इस बार भी हम इस लड़ाई को लड़ेंगे और उनको विमेन रिजर्वेशन बिल बेशक हमको देना होगा। इसलिए इसका बीच में रहकर रात को आके इसका इम्प्लीमेंटेशन भी अनाउंस किया ऑन 17 तो कितना I also just want to add that also the BJP women's wing and everyone will take note of this. You know, it is anti-women and anti-country, anti-federalism. So they should not support this bill with delimitation and census, but they should also demand. All women across the country, this message should reach to every single woman, and every women's group should together. I think we will be able to demand and immediately to be this Manjushan. We hope it will be implemented. और बिना पारदर्शिता के, बिना महिलाओं की बात सुने इस तरीके के कानून लाना बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गैर लोकतांत्रिक है। तो हम तो यही कह रहे हैं कि आप अगर कुछ ला रहे हैं तो लोगों के सामने रखिए, महिलाओं से बात करिए, लोगों से बात करिए। बहुत लंबा मूवमेंट चला है इस विमेंस रिजर्वेशन का, बहुत ज़्यादा लोगों में समझ है, महिलाओं में समझ है। बिना महिलाओं से बातचीत किए महिलाओं के नाम पर कोई बिल लाना हमें मंजूर नहीं है। और ये पॉलिटिकली कंटेंशियस डिलिमिटेशन जो कि नॉर्थ इंडिया को बेनिफिट करेगा साउथ इंडिया के कॉस्ट पर, हम उससे बिल्कुल विरोध करते हैं कि उसके साथ लिंक किया जाए महिलाओं के रिजर्वेशन को। तो बिल्कुल डीलिंक करके डिलिमिटेशन और सेंसस से महिला आरक्षण इमीडिएटली लाइए एट द करंट स्ट्रेंथ ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर। थैंक यू। और क्योंकि कुछ साथी थोड़ा लेट जुड़े थे, तो जो कैंपेन सॉन्ग हमने रिलीज करा है, वी वुड लाइक टू प्ले दैट वन मोर टाइम।
कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़ा एक नुक्ता है जो मैं कहना चाहती हूँ, और वो है बेईमानी का। बेईमानी सिर्फ पैसे की नहीं होती है, मैं उस घोटाले वाली बात को नहीं कर रही हूँ, लेकिन बेईमानी जो राजनीतिक बेईमानी हमारे यहाँ चल रही है, चाहे वो महिलाओं को वादा करके वादा खिलाफी करना, फिर उस वादे को तोड़ मरोड़ के सेंसस और डिलिमिटेशन से जोड़ना, फिर सेंसस हटा के डिलिमिटेशन करवाना, फिर डिलिमिटेशन करवाने के लिए सीटें बढ़वाने की बात करना, ताकि बीजेपी जो है वो अपनी सीटें बढ़ाए, नॉर्थ इंडिया की सीटें बढ़े, साउथ इंडिया का प्रोपोर्शन कम हो। ये सारे जो राजनीतिक तिगड़मे हैं, ये तिगड़मे और ये बेईमानियां हम मानते हैं कि महिला आरक्षण का मुद्दा आइसोलेशन में नहीं देखना चाहिए। इन्होंने राजनीति को जिस तरह गंदा किया है, उस गंदी राजनीति का मुकाबला करने के लिए पूरे जनवादी आंदोलन को एक होकर महिला आरक्षण के लिए भी और अपनी राजनीति को सुधारने के लिए भी संघर्ष करना होगा। शुक्रिया। राजनीतिक बेईमानी नहीं।